ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، مڈل ایسٹ کی کچھ اور خبریں آئی ہیں، اس پر توجہ کر لیتے ہیں، پھر بھارتیہ خبروں کی جانب بھی بڑھیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر پر ایرانی حملے روکنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان فنڈز کی ادائیگی پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے اور اس سے متعلق کوئی بھی بات غلط ہے۔ یعنی کہ قطر پر جو حملے روکے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے اس کو واپس دیا جائے گا، اس طرح کے وعدوں کے مطابق حملے روکے گئے ہیں، اس پر بات ہوئی ہے، اس لیے روکا گیا۔ یہ خبریں افواہیں پھیلانے کی کوشش ہو رہی تھیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، اخبارات کے ذریعے سے، جس کے چلتے جو ہے باقاعدہ اب قطر نے اور قطری وزارت خارجہ نے آفیشیل بیان جاری کیا ہے۔ ترجمان ماجد الانصاری، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ سے اعلیٰ سطح پر رابطہ جاری ہے اور ہمارے مطالبات جو ہے انہی چینل کے ذریعے سے اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی اور ذریعہ مذاکرات کا اختیار نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادھر آبنائے ہرمز میں جاری مسلسل کشیدگی اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی بحری ناکہ بندی کے درمیان فرانسیسی ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی صدر امانویل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر آئندہ جمعہ کو پیرس میں ایک ویڈیو کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اس کانفرنس میں یورپی ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل اس حیاتیاتی مسئلے پر غور کیا جائے گا، ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ ایلزے پیلیس کی جانب سے منگل کو یعنی آج یہ بیان جاری کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ اس موقع پر اس متوقع اجلاس میں وہ تمام ممالک شریک ہوں گے جو آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کی بحالی کے لیے کثیر القومی دفاعی مشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ہیں، تاکہ سیکیورٹی حالات سازگار ہوتے ہی کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، سلطنت عمان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق سلطان ہیثم بن طارق اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد نے آج ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال کی پیش رفت اور ممالک و اقوام پر اس کی سیکورٹی اور معاشی اثرات پر تبادلے خیال کرنے کی رپورٹ سامنے لائی ہے۔ اسی تناظر میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں سمندری جہاز رانی کی سیکورٹی کے تحفظ کے لیے عالمی کوششوں کو یکجا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر جو ناکہ بندی ایران کی جانب سے اور اس کے بعد ہونے والی امریکہ کی جانب سے، یوں سمجھیے کہ تمام کے تمام ممالک کے گلے پر اس وقت ایسی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے جو ہے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچائی رہی ہے۔ بہرکیف اس دوران ناظرین گرامی، جو ناکہ بندی امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہے اس کو لے کر کے جو مختلف رپورٹ ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ 15 سے زائد امریکی بحری جہاز اس وقت جو ہے وہ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس کے علاقے میں جو بندرگاہیں ہیں ایران کو فائدہ پہنچانے والی، وہاں پہنچائے گئے۔ امریکی فوج نے تصدیق کی کہ محاصرہ خلیج عمان اور بحر عرب تک پھیلا دیا جائے گا۔ اس آپریشن کو آپریشن ایپک فیوری دیا گیا ہے، جس کی حمایت کے لیے 15 سے زائد جنگی جہاز تعینات کیے گئے۔ اس میں ابراہم لنکن سمیت 2 طیارہ بردار بحری جہاز، 12 تباہ کن جہاز شامل ہیں۔ مزید برآں طیارہ بردار جہاز USS جارج HW بش بھی افریقہ کے راستے خطے کی طرف رواں دوا ہیں، جس نے حوثیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بحر احمر کے بجائے افریقہ والا راستہ اختیار کرتے ہوئے ان پانیوں میں پہنچا ہے۔ محاصرے کی نگرانی کے لیے ڈرونز، جاسوس طیارے، ریڈارز اور مصنوعی سیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز کو ایرانی بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کا کام بھی اس وقت شروع کر دیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔
उधर नाज़रीन जनूबी कोरिया के सदर ली जे मेयोंग ने फ़िलिस्तीन में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होने वाले होलोकॉस्ट से तशबीह देकर दुनिया के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइली अफवाज की जानिब से फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ किया जाने वाला तशद्दुद नाज़ी दौर में यहूदियों के कत्लेआम से मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने अपने दावे के हक़ में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें मुबैना तौर पर एक फ़िलिस्तीनी शहरी को तशद्दुद के बाद इमारत से नीचे फेंकते हुए दिखाया गया है। नाज़रीन उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार किसी न किसी तरह से तनाज़े का शिकार होते हैं, गुज़श्ता 3-4 दिनों से वो अपने आप को ईसा मसीह बना करके पेश करके एक वीडियो जो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर की है, वो अब तक जो है अंदर अलग अलग तरह की जो है चीज़ें ख़ुद ईसाई मज़हब में पैदा की जा रही हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मस्नूई ज़हानत से तैयार करदा एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्हें अपने आप को ईसा मसीह के अंदाज में एक मरीज़ को शिफा देते हुए दिखाया गया और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है उन्होंने पोप को निशाने पर लिया था और इसके सिलसिले में वो लगातार पोप को जो है निशानदेही कर रहे थे। ऐसे में जो है उन पर तनकीद इस वक्त बढ़ना शुरू हुआ। तनकीद बढ़ने के बाद इन्होंने तस्वीर तो हटा दी थी, लेकिन वो तस्वीर अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कुर्सी को हटाने के लिए भी इस्तेमाल में किया जा रहा है। अलग अलग तरह के तफसीर इस चीज़ को लेकर के आ रहे। ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईसाई जहाँ पर उनका एक बातिल अक़ीदा है, जो मुशरिकाना अक़ीदा है, उसके अलावा मुसलमान उसको जो है एक नबी मानते हैं, ऐसे में वो एक मज़हब की जो है तौहीन नहीं कर रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के जो अक़ीदा मुसलमानों का है और जो अक़ीदा खुद उन्हीं ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है, इस तरह से जो है किसी ने लिखा है कि इन्होंने इस तरह से जो यहूदियों को खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें की। जाहिर सी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़त्ल करने का इल्ज़ाम तो यहूदियों पर लगता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये चीज़ें जो है आगे जा कर के ट्रंप के लिए बड़ी तकलीफ़दा होने वाली है। उधर नाज़रीन जॉर्जिया मेलोनी नेतन्याहू पर फिर से बरहम हो गई हैं। इसराइल को करीबी दोस्त की जानिब से बड़ा झटका लगा है, ये कहा जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, वेरोना में मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने खुद उस फैसले की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है, जिसके बाइस इतालवी हुकूमत ने दिफाई मुआहदे की खुदकार तशदीद ऑटोमेटिक रिन्यूअल को रोकने का फ़ैसला किया। फ़ैसला पीर के रोज़ एक आला सतही इजलास में किया गया जिसमें इटली के वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर दिफा भी शरीक थे। यानी इटली के उस इक़दाम से पूरी दुनिया को पैगाम गया है कि अब इसराइल की फ़ौजी पॉलिसियों से वो मुतमईन नहीं हैं। ख़ास तौर पर लेबनान में पैदा होने वाली सूरत हाल ने इटली को सख्त नाराज़ कर दिया है। यानी दिफाई मुआहदे जो होते हैं उसको मुकम्मल तौर पर इटली ने इसराइल से तोड़ दिया है। उधर नाज़रीन में मगरबी एशियाई तनाज़े में एक अहम मोड़ ने पूरी दुनिया की धड़कनें फिर से बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की जैसी ही खबर मिली तो फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने फिर से उन्होंने 2 मरतबा वक्त ज़ाये किए बगैर जो है वो ईरान को जो है फ़ोन किया है, सदर साहब से बात की है, मुसालहत की कोशिशों को उन्होंने तेज़ किया है। मज़ीद तरह मैक्रोन बरतानिया के साथ मिलकर हुर्मुज़ में जारी बहरान के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई करने का भी मंसूबा बना रहे हैं। इस तरह की अलग अलग तरह की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन में ये मशरिक़ वस्ता की ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रख दी गई। उत्तर प्रदेश के सनाती शहर नोएडा में हज़ारों फैक्ट्री मजदूरों का जो एहतिजाज हुआ, जो अब तक जिस पर तबसरे चल रहे हैं, कम उजरतों और ख़राब काम के हालात के ख़िलाफ़ शुरू होने वाला देखते देखता एक बड़ा सियासी तनाज़े में इस वक्त बदल गया है। एक जानिब मजदूर अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना होने की शिकायत कर रहे हैं, तो इन एहतिजाज करने वालों को पाकिस्तानी प्रोपेगंडे पर या पाकिस्तानी साजिश का नतीजा कह करके जो है पूरी तरह से इसको मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बड़े एहतिजाज को और नौजवानों के अपने मुतालबात को एकसन जो है मुस्तरद करने की बातें सामने आ रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के तकरीबन 80 मकामात पर 40,000 से ज़ायद मजदूर सड़कों पर निकल आए। कई मुलाजिमीन थे। कई मकामात पर पुलिस के साथ झड़पें हुई। अब तक 300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों को आग लगाने, तोड़फोड़ मचाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तनख्वाहें बढ़ाने को लेकर के ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि जब कभी भी एहतिजाजात हुए हैं, मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है
या तो उनको दहशतगर्द गद्दार कहा गया है या फिर जो है पाकिस्तान से उनको जोड़ने की गई है, जिसके चलते जो है अब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है कि ख़ुद हिंदुस्तानी जो अपने मुतालबात को बड़े परेशान हैं उनको लेकर के जब आते हैं तो पाकिस्तान के साथ जोड़ करके या उसको पाकिस्तान की साजिशों का नतीजा कह करके किस तरह से नौजवानों की आवाज़ को दबाने की कोशिशें होती हैं। यही वजह है कि लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नोएडा में एहतिजाजी कारकुनों की हिमायत में खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस मुल्क के मजदूरों की आखिरी चीख थी, जिसकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया, जो अपना हक मांगते मांगते थक गए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, बिहार का नक्शा बदल गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक जिस कुर्सी पर सेकुलर माइंडेड और वहाँ के मकामी सतह के जो पार्टियां थी जिन्होंने वहाँ पर मेहनतें की, अपनी पहचान बनाई और फिर कई सालों तक जिन्होंने वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहकर तमाम कौम व तबक़ात को लेकर के चलते रहे, अब उस कुर्सी पर जो है बीजेपी का कब्ज़ा हो चुका है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को वज़ीर आला ओहदे का हलफ लिया था। 14 अप्रैल को इस्तीफ़ा देने के बाद ये मुद्दतकार 145 दिनों की हो गई। ये दूसरी बार है जब वो इंतहाई कम मुद्दत के लिए वज़ीर आला के ओहदे पर फाजिज रहे। अब जो है यहाँ पर सम्राट चौधरी के नाम की हिमायत दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने की थी, जो है अब यहाँ पर बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन से मुलाकात करके रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का दावा पेश कर दिया है। गवर्नर ने इनका ये दावा भी कबूल कर लिया है। 15 अप्रैल की सुबह 11 बजे हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद करने का फ़ैसला लिया गया है। इस तकरीब में सम्राट चौधरी बिहार के अगले वज़ीर आला की शक्ल में हलफ लेंगे। उनके साथ बिहार की नई काबीना की कुछ अराकीन की भी हलफ बर्दारी होगी और फिर उसके बाद बिहार में किस तरह की सियासत होगी, किस तरह के फ़ैसले होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।